So good morning once again. In the last discussions of random variable, I taught you about how to get the probability distributions of random variable. The problem which are related to the mean and variance of a random variable are not in the syllabus. These topic are removed, but it may ask to get the to form the probability distribution table. That means probability distribution is PD. Mean and variance you can skip this year because it's not in the syllabus. Even I have given the formula for these also. And what is random variable? I already explained. It is related to the random experiment, and it is really actually a function whose domain is a, what is the domain? Domain is a sample space, and codomain is a set of real number or subset of a real number. Maybe natural number, maybe whole numbers, depend on the situation. But most of the questions you are getting whole number, so you think that it is the whole number. It's not like any number, because the problems which are related to the class 12 syllabus are just few only, and very simple questions are there. So random experiment I explained, and as I got the message from the few of the students from this class that sir, that question of balls one, bulb one, we did not understand. Please explain once again. And that day only few students attended because they had some other classes, important classes was there. So I told you that I will share the videos with you. But in place of that sharing the video, I'm just explaining because that day only we did one and two questions only, and the other questions were very easy. So once again, I'm solving question number 6 on the demand of you. Explaining once again. The thing was that only there some students were saying using the combination, and some were saying using the independent and dependent events. Because here it was written 4 balls are drawn or 4 bulbs are drawn. Okay, someone can use using the binomial distribution also, but we are not using binomial distribution as it is given in the exercise related to the random variable. Whenever it is the experiment consisting more than 3, sampling of more than 3 or 3 balls or 3 bulbs, whatever, then we use generally binomial distribution, but it is removed from the syllabus. So without using binomial distribution, how to solve? So when the four bulbs are drawn, see, when the 4 bulbs are drawn, only this word is there, then we will use the combination. But the word was written there with replacement. The meaning of with replacement is itself explaining us that 1 by 1. So we do not use here, we should not use combination. We have to use independent events concept. Independent events, why? Because the ball is replaced or bulb is replaced. मतलब bulb को वापस रख दिया. So when you are keeping the bulb once again in the same box, then the total number of bulbs will remain same. So this is not dependent event, this will be independent events. And for the independent events, what we are writing, P into PB into PC into PD, 4 bulbs are drawn. So I am explaining how many bulbs are there. Question number 6 of exercise 13.4 on your request, on your demand that sir please explain, because few students asked me to explain once again. That day who attended, those who did not attend can get the benefit if you want. Otherwise you can study your other subject today also. I don't have any problem, because already taught the theory of random variable. Only few questions remain to solve. So this is the question number 6 of exercise 13.4. Few questions already solved before 2-3 days, and in the explanation of the random variable I given one example of 3 coins are tossed. That day also I have solved. So this is the one of the good question of this exercise without using binomial, because 4 sampling we are taking. When the 4 sampling are taking, we are using binomial also. But here binomial is removed and the problem is related to the random variable. See here, 6 defective bulbs and 24 good one. Total 30 bulbs are there. How many bulbs we are taking? 4 sample. Sample of 4 bulbs. Sample of 4 bulbs with replacement. With replacement.
This word with replacement is very important word. This is suggesting us independent events. Independent events. So we can use the formula of P into PB into PC into PD because of the 4 PA intersection B intersection C intersection D means P into PB into PC into PD multiplication theorem for independent events. So sample of 4 balls is drawn. The first we can have the values of x 0, 1, 2, 3, 4 because number of defective balls is equal to x. The question is asked, what is the probability distribution of number of defective bulbs? तो देखो आप 4 बल्ब निकाल रहे हो, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, एक बॉक्स है उसमें बल्ब रखे हुए 30 और ये पता है कि इसमें 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं। आपने 4 बल्ब निकाले एक के बाद एक वापस रखते हुए, वापस विथ रिप्लेसमेंट, तो क्या क्या हो सकता है? एक भी बार हमारे पास डिफेक्टिव नहीं आए, एक भी डिफेक्टिव नहीं आए, मतलब सभी के सभी अच्छे आ जाएं। 24 बल्ब में से आए, चारों बार हमने जो बल्ब निकाले अच्छे अच्छे बल्ब निकले, ऐसा हो सकता है? फिर बोलो नहीं सर ऐसा भी हो सकता है ओनली 1 बल्ब डिफेक्टिव आया और बाकी 3 अच्छे आए हों। फिर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा भी हो सकता है 2 भी आ सकते हैं डिफेक्टिव। फिर आप बोलोगे सर 3 भी डिफेक्टिव आ सकते हैं और चारों के चारों भी डिफेक्टिव आ सकते हैं क्योंकि 6 है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की? दीज आर द एक्स। तो एक्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी नहीं आए मतलब 0, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 0, 1, 2, 3, 4, these are the 4 possibilities, 0, 4, 5 possibilities, 0, 1, 2, 3, 4. Now what is the meaning of 0? जो बोल रहे हैं वही लिखना है। अगर आपने जो बोल रहा है वही लिख रहे हैं, that means what you are thinking that you have to write ना, तो thoughts procedure सही होना चाहिए। Probability requires lot of thoughts, divergent thoughts, सोचना ज्यादा पड़ता है एंड स्टेप्स कम होती है, पर जो सोच रहे हैं वही लिख रहे हैं। हमने क्या सोचा? P x equal to 0, P no defective bulbs, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? पहला बल्ब निकाला वो भी अच्छा आया, नो डिफेक्टिव का मतलब अच्छा आया, सेकंड गुड वन, थर्ड गुड वन, फोर्थ गुड वन, मींस P नॉट डिफेक्टिव, D नॉट, D1 भी नहीं है, D2 भी नहीं है, D3 भी नहीं है और D4 भी नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल आर गुड, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, नॉट बार, G4 सॉरी। डिफेक्टिव का नेगेशन क्या होगा? गुड, यहां डिफेक्टिव नेगेटिव। अब यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी ना। दिस वी कैन राइट PG1 इंटू PG2 इंटू PG3 इंटू PG4। आइदर यू राइट PD1 बार, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, पहला भी डिफेक्टिव नहीं आया मतलब अच्छा आया, बात एक ही है। 1 माइनस लिखना पड़ेगा, D1 बार लिखोगे तो डिफेक्टिव के लिए। अब डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सर, क्या चिंता करना है, डिफेक्टिव बल्ब 6 हैं, टोटल 30 हैं, 30 तो 6/30। सो P डिफेक्टिव बल्ब, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं पहले लिख देता हूं यहां, 6/30 मीन्स 1/5। P गुड बल्ब, कितने हैं गुड बल्ब? 24/30, तो 5 से कट जाएगा, 4 नहीं 6 से, 6 4 जा and 6 5 जा, 4/5। Okay, we can write 1/5, 4/5 for good bulb, 4/5. So if it is good bulb, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, that you can write 4/5 raised to 4. This also I can write 4/5, 4/5, 4 times I can write 4C0 4/5 raised to 4. अब आपको यहाँ बुरा लग जाएगा, बिल्कुल बुरा लगेगा सर ये 4C01 क्यों लिख रहे हो? अच्छा खासा समझ में आ रहा था क्वेश्चन, वो इसलिए लिख रहा हूं मैं कि आगे के जो सिचुएशंस है ना उसके अंदर केसेस ज्यादा बनेंगे, तो उसको समझाने के लिए मैं यहीं से समझा दूं उस चीज को, वैसे आगे भी समझा ही रहा हूं लेकिन वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। 4C0 का मतलब है 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं आया, इसलिए 0 लिखा और 4 लिए, ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन का यूज होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 बल्ब आप लेने, पहला नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, चारों ही अपने पास डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, एक एक करके अपने 4 बल्ब लिए हैं, कॉम्बिनेशन परमुटेशन नहीं लगेगा। देखो सेकंड में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ये चीज जो मैं बोल रहा हूं ना, तो इसको अपन लिख लेंगे 256/4
625. दिस इज द फर्स्ट केस. बस पी एक्स इक्वल टू 1 लिखना है. अब पी एक्स इक्वल टू 1 का मतलब एक्चुअली ये क्या प्रॉब्लम किसकी है? इंडिपेंडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही तो हुआ ना. पर 4 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए यहाँ पर जो मिलकर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते. तो आपको जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया तो ये इसमें टेंशन क्यों करना. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कौन सा केस है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस है जिसमें डिपेंड नहीं कर रही इवेंट्स. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्स इसमें क्या लिखेंगे? पी वन डिफेक्टिव बल्ब. अब मुझे ये बताओ वन डिफेक्टिव बल्ब मैं कह रहा हूं वन डिफेक्टिव बल्ब तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? 4 बल्ब्स आर यू आर टेकिंग ना. स्टिल 30 स्टूडेंट्स आर absent. सी द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट आउट ऑफ 100 70 in the class. 95 से 65 it means 30 are there, 30 absent. How you can blame to the teacher? Yeah, how? You just think once. Huh? If you are these many students are absent, 30 students out of 35 may be having the some urgent work, but not all. Anyway, leave it. No need of giving the last day of all these lectures to you. Now here I have to give the question. Tomorrow I will solve one questions of this related to the what new concept. Case study. Okay, one question I will explain how to solve such question. That also I will do tomorrow before the pre-board. One defective bulb. पहला डिफेक्टिव आए, एक ही चाहिए ना, तो आप बोलोगे सर दूसरा तीसरा चौथा नहीं आएगा उस कंडीशन. देन कोई बोलेगा नहीं सर पहला तो अच्छा है दूसरा भी तो आ सकता है डिफेक्टिव. यस आपकी बात सही है. कोई बोलेगा सर पहला दूसरा तो अच्छा है लेकिन तीसरा डिफेक्टिव आ गया. कोई बोलेगा नहीं सर पहला दूसरा तीसरा अच्छा था चौथा आया. ये तो सारी पॉसिबिलिटी, यही तो प्रोबेबिलिटी है ना, गेम ऑफ चांस. तो हमें तो सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है. तो सारी पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है? अब 4 में से 4 बार ये 4 में से एक बल्ब डिफेक्टिव आया तो ऐसी कितने पॉसिबिलिटी बन रही? पहला दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा पहला तीसरा नहीं, है ना, दूसरा पहला तीसरा चौथा नहीं, तीसरा पहला दूसरा चौथा नहीं, चौथा पहला दूसरा तीसरा नहीं. अरे इतना लिखेंगे तो कितना टाइम जाएगा ना. तो 4 में से एक तो कितनी पॉसिबिलिटी हुई? 4C1 मतलब 4 पॉसिबिलिटी. अभी बोल के बता दी मैंने लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे ओनली वन. ऐसा लिखेंगे वन डिफेक्टिव बल्ब, विल राइट इट 4C1 with probability of 1 is defective, first one, and second one is good one, third one is good one, fourth one is good one. But this D may be replaced here. D इधर आ जाएगा तो G इधर आ जाएगा, D 4 पोजीशन पर आएगा, तो इसलिए ऐसा लिखा है. Then we can write it 4C1 PD1 PG2 PG3 and PG4. Okay. Then this is 4 PD1 first is defective. Defective probability कितनी है? 1/5. PG2 4/5 4/5 4/5 means it is again 4/5. उस दिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी सर 4/5. मैंने कहा था 5 बार 4 बार वही चीज आ गई वापस 4. इधर तो डायरेक्ट आ रहा है, इधर ये इस 4C1 के कारण वापस 4 आ गया और इधर D1 का 1/5 तो ये 4/5 हो गया. रेस्ट टू 4 मींस 256/625. इसका भी यही आंसर आएगा. नाउ Px इक्वल टू 2, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग. नाउ 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, 2 डिफेक्टिव बल्ब, 2 डिफेक्टिव बल्ब हैं. तो 2 डिफेक्टिव है तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं 2 एक लिख के बताऊंगा. D1 एंड D2 आर डिफेक्टिव बट अदर 2 आर गुड मींस G3 एंड G4. और ये पोजीशन इधर उधर सब हो सकती हैं. तो कितनी पोजीशन बनेगी? 4 into 3/2 मींस 6 पोजीशन बनेगी. आप बना के देख सकते हो. D1 को यहाँ, D2 को यहाँ पर, यहाँ पे G1, यहाँ D1, ऐसे 6 बनेंगे. 4 into 3/2 तो वो 6 पोजीशन में लिखूंगा नहीं यहाँ पे, जैसे मैंने 4 पोजीशन भी नहीं लिखी, समझा दिया. अब 4C2 का मतलब 4 into 3/2 into 1. PD1 का मतलब, PD2 का मतलब PG3 एंड PG4. ये तो हमें पता है G मतलब गुड है, तो ये तो 6 हो गया.
एंड पी डी वन मतलब 1/5 1/5 दो बार आएगा, 1/5 का स्क्वायर, और ये 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इंटू 6 96/625, 96 इंटू 625 विजिबल। हेलो, हेलो, visible or not? Last step. So under final step I am writing px equal to 3 here because there is no space. I am writing here px equal to 3. 12th class student can understand this ना, कि सर इधर लिख दिया आपने, ऐसे ऐसे करा, हम बोर्ड एग्जाम में ऐसा करते तो आप तो नंबर काटते हो, नहीं काटते भैया हम। अगर बच्चा इस तरह से कहीं पे भी लिखता है तो हम सब तरफ देख लेते हैं, बट बोलते हैं सिस्टमेटिक लिखो, पर कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इतनी सी स्पेस के पीछे बोर्ड मिटा वापस लिखो, तो मैं यही लिख देता हूँ, बुरा मत मानना ना। px equal to 3, px equal to 3 का मतलब क्या होगा? 3 डिफेक्टिव बल्ब, 3 defective bulb means D1, D2, D3 and good one is this is, and 4 में से 3 ले रहे हैं, 4C3, 4 कंडीशन बनेगी इसमें भी, 4C3 is 4C1 complementary combination of class 11, so this is 4. Now I can write directly 1/5 cube and 1 4/5, so this is 16/625. आई एम सॉरी बट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको सर इंटू नहीं लिखा आपने, यहाँ दो जगह तो लिख दिया, तो ऐसे नंबर काट लेंगे क्या? नहीं काटते भैया, हम समझ रहे हैं, आपको कंसेप्ट पता है, तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख देंगे तो चलेगा, ऐसे नहीं काटते नंबर। 12th क्लास के टीचर्स बहुत बड़ा दिल लेके चलते हैं, आपके नॉलेज को चेक करना होता है यहाँ पर, ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर नंबर कोई नहीं काटता है। पर तुम तो कंसेप्ट ही नहीं पता और बोलो सिली मिस्टेक हो गई और नंबर क्यों काट दिए, वो नहीं चलेगा, कंसेप्ट पता होना जरूरी है आपका। Okay, x equal to 4, all are good, no, all are defective, अपन defective लिख रहे हैं ना, मतलब p d1 and d2 and d3 and d4, d stand for defective, यह बता दिया आपने, d pd, आप चाहे तो यह लिख सकते हैं pd जनरल और pg गुड। इसमें क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 4 मीन्स 1/625। बिफोर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो हो गया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए कंडीशनल ऑर्डरिंग, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। बिफोर राइटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जस्ट यू चेक द सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज 1 or not, then only write. So you can see here 256, 256, 256, 256, 512, 512 plus 96 plus 16, 500 में इधर सम भी करके चेक कर लेता हूं, प्लस 96 प्लस 16 एंड प्लस 1, 625 आ रहा है। सो माय आंसर इज करेक्ट। कभी यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं ना, कभी कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि उस दिन एक स्टूडेंट ने बोल दिया था हमको, और उसका कहना भी सही था कि सर इसमें ऐसा कहाँ लिखा 1/1, तो 1/1 वर्ड शुड बी देयर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, कि 1/1 लिखना चाहिए, बट उन्होंने 1/1 नहीं लिख रखा, डायरेक्ट लिख रखा है, बट विथ रिप्लेसमेंट है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि क्या यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और विदाउट रिप्लेसमेंट डिपेंडेंट, कॉम्बिनेशन नहीं लगाना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, टेबल बना रहा हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा भावनाओं को समझें। इधर x i p i 0 1 2 3 4, 0 पे कितना आया देखो आंसर, 256/625, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, भावनाओं को समझो। 256/625, देन 2 पर कितना है, 96/625, 3 पर 16/625 और 1/625, दिस इज द आंसर। ठीक है, इसका मीन, इसका वेरिएंस, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, वो सिलेबस में नहीं। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये एक्सरसाइज, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे तो लगता है मेरे नॉलेज के हिसाब से कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए एक बार और बता दिया मैंने। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट वंस अगेन
For your record purpose, if you want, you can see later. Now the question of miscellaneous exercise. Tomorrow also you can ask the doubt of these two exercise. I don't have any problem. I will solve one question on case study based. Okay, tomorrow same time. One question I will solve on case study and your doubts of these two miscellaneous exercise and this exercise if you have. मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्या? लास्ट टाइम की क्लास के किसी ने शेयर भी नहीं किए? देख लो कंडीशन, उस दिन कम से कम 40 स्टूडेंट्स तो थे क्लास में। 40 स्टूडेंट में से किसी ने अटेंडेंस भी नहीं ली, 40 स्टूडेंट में किसी ने उसको स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए थे। उस दिन मैंने साफ लिखा था कोई ना कोई तो स्टूडेंट होगा, प्लीज शेयर विथ मी एटलीस्ट, कि सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे लेकिन मैंने क्लासरूम में शेयर नहीं किए, मैंने अटेंडेंस भी ले ली थी, प्लीज मुझे शेयर कर दें प्राइवेटली, देन आई विल शेयर इन द ग्रुप, कि कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने, कौन से सिलेबस में से हटा दिए, सब लिख दिया था मैंने। नाउ आई विल नॉट राइट ऑल दिस ना, वो स्क्रीनशॉट पे पता लग जाएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, I told you that's very important question and sometime it may be asked in exam. It was the question number 13. Yes, I told you कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जिससे रिलेटेड टू द हार्ट अटैक तो आपको अटैक आ जाएगा, ऐसा बोला था, क्योंकि स्टूडेंट अगर इसको करके नहीं जाएंगे तो देयर इज ए चांसेस ऑफ मेकिंग द मिस्टेक इन द एग्जाम। अभी तक आया नहीं है पिछले कई सालों में, बट आ सकता है। जब आएगा तो आपका चांसेस कम है कि आप इसको कर पाए, गलत होने के चांस ज्यादा है। See, it is the question is question number 13, सबसे इंपॉर्टेंट। ऊपर में कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, कहां से कहां तक, 4 से लेकर 11 तक तो सिलेबस में है ही नहीं, 4 to 11 तो सिलेबस में है ही नहीं। 1 2 3 वेरी वेरी इजी रिलेटेड टू द बायस थ्योरम ऑलरेडी डन, नॉट 4 5, हाँ 4 to लेकर 4 to 11 नॉट इन सिलेबस। थर्ड 1 2 3 आर वेरी इजी डायरेक्टली बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। सो 12 is also done। 12 question is the lengthy question of Bayes theorem, 3 बार उसको इवेंट्स फाइंड करनी है, इसलिए वो भी इजी है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें और एक 16, 13 एंड 16 थोड़े से टफ। 13 बता रहा हूं मैं। assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। हमें ये मालूम है कि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अटैक आएगा, उसके चांसेस 40% है। क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 100 में से 40% चांसेस है कि उसको अटैक आ सकता है, किसी के लिए भी जनरल बात चल रही है। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्सेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 30%। लेकिन अगर आप योगा और मेडिटेशन करते हैं ना तो उससे आपके अटैक आने के जो चांसेस है, नॉट आपके बोल रहा हूं मैं, इन जनरल बोल रहा हूं, ठीक है? आप तो बच्चे हैं, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, होता भी नहीं है, लेकिन किसी भी लिए जनरल जो मोर देन 40 ईयर्स जनरली होता है तो उनके लिए 30% चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप मेडिटेशन योगा करते हैं। बचपन से करने की आदत डालेंगे तो बहुत फायदा होगा। और आप देखो एनसीईआरटी कितना आइडियल लेके चलती है चीजों को, आप क्वेश्चन का फॉर्मेशन भी देखो, उन्होंने 30% किसके लिए दिया? मेडिटेशन एंड योगा, टू प्रमोट द मेडिटेशन एंड योगा। वो भी जानते हैं कि ये चीज ज्यादा सही है। एंड द प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ ए सर्टेन ड्रग्स रिड्यूस द चांसेस बाय 25%। देखो मेडिसिन जो है वो कम, उसके जो चांसेस है उसको कम दिया है उन्होंने, ताकि आप किसको प्रिफर करें। मतलब माइंड में बच्चों के यहीं से बैठ जाए कि मेडिटेशन योगा ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग क्या फास्ट रिलीफ में बिलीव करते हैं, क्विक रिलीफ पर बिलीव करते हैं, और यही होता है। At a time a patient can choose any one of the two options with equal probability। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है, मेडिटेशन योगा लो या आप मेडिसिन लो। It is given that after going through the one of the two options, किसी पेशेंट ने क्या है कि दो में से एक ऑप्शन को यूज किया, एंड द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर्स है, उसके बाद भी उसको अटैक आ गया। ऐसा तो बोला नहीं कि 100% नहीं आएगा तुमने मेडिटेशन योगा कर लिया, या 100% नहीं आएगा अगर आपने मेडिसिन ले लिया, तो बोला ही नहीं, चांसेस कम हो जाएंगे, बस ये बोला है। तो अटैक आया उसके बाद भी,
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोज अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मेडिटेशन इन योगा कर रहा था, उसके बाद भी उसको अटैक आया। तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी होती है, जैसा मैंने आपसे बोला, दैट इज रिलेटेड टू द बायस थ्योरम, है ना। जो चीज हमें फाइंड करनी है, आप सोचो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम, ही गॉट द अटैक एंड ही वाज यूजिंग व्हाट ही वाज यूजिंग, मेडिटेशन एंड योगा फॉलो कर रहा था, स्टिल ही गॉट द अटैक। तो मेडिटेशन एंड योगा को फॉलो करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अटैक आने का। तो हम क्या लेंगे, E1, द पेशेंट वाज फॉलोइंग और using meditation and yoga. So what is the find the probability that the patient followed, मैंने आपको बोला था what is the probability, find the probability को हटा के event that करके लिखना होता है E1 और E2। so E1 हम क्या लिखेंगे, event that the patient followed, E1 event म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है, सब एक्सप्लेन कर दिया है आपको बायस थ्योरम में। इवेंट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखा है ना, हाँ, इवेंट दैट पेशेंट followed a course of meditation and yoga, a course of meditation and yoga, मेडिटेशन और योगा को फॉलो कर रहा है। E1 ये लिया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, मेडिसिन। तो E2 क्या लिखेंगे आप, इवेंट दैट कोर्स ऑफ मेडिसिन, इतना लिख सकते हैं, फॉलो द कोर्स ऑफ जो मेडिटेशन एंड योगा के प्लेस पे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन लिख दें। ऐसे ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक और इस तरह के वर्ड्स पर नहीं जाते, भावनाओं को समझते हैं हम लोग। मेडिटेशन लिख दिया और मेडिसिन लिख दिया, समझ में आ गई बात। E1 और E2। और ए का मतलब क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, देखो मेडिसिन लेने के बाद भी अटैक आता है, मेडिटेशन एंड योगा से भी अटैक आ रहा है। सो इन बोथ द केसेस द कॉमन इज गेटिंग हार्ट अटैक। सो ए इक्वल टू इवेंट दैट पेशेंट गॉट हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आया, ये अपन ही लिया। अब PE1 क्या है, कितने परसेंट चांसेस है, मेडिटेशन इवेंट दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, कितने हैं, PE1, दोनों में से एक लेना है, या तो ये ले रहा है तो E1 ले रहा है तो E2 नहीं है, E2 है तो E1 नहीं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 1/2 PE2 1/2, दोनों एक दूसरे की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इनका सम 1 आना जरूरी है। दो में से एक ऑप्शन, आइदर ऑफ द टू, सो दोनों में से कोई एक होगा, एक का होना दूसरे को रोकता है, हैपनिंग ऑफ वन प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर, दोनों में से कोई एक, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। PA बाय E1, हमें क्या फाइंड करना है, लिख लेते हैं पहले तो, PE1 बाय A, PE1 बाय A ऐसे लिख लेता हूं, PE1 बाय A टू फाइंड। P1 बाई का मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसा मैंने आपसे कहा था इवेंट को हटा के क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलोड अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, ऐसे बताया था। ये लाइन और ये लाइन दोनों को मिला के लिखना है, इट इज नोन दैट से ऐड करना है, इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट, क्या लिखेंगे, इट इज नोन दैट दूसरी वाली इवेंट, पेशेंट गॉट हार्ट अटैक, ये फाइंड करना है, उसको अटैक आया है ये मालूम है, क्या फॉलो करते हुए, कोर्स ऑफ मेडिटेशन ऑफ योगा। PE1 बाई ए स्टेप्स के ही मार्क्स है CBSE में, ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप। PE1 बाई ए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन पहले आएगी, पेशेंट गॉट हार्ट अटैक
सफर लिख लेते हैं गॉट की जगह, सफर अ हार्ट अटैक, पेशेंट सफर अ हार्ट अटैक, जो टर्मिनोलॉजी बुक में यूज की है वही यूज कर रहा हूं, पेशेंट सफर्स a heart attack. Probability that patient suffer a heart attack when it is known that, देखो E1, सॉरी यहाँ A/E1 लिखना था मुझे, A/E1 उल्टा लिखना था ना इसका, P/E1, प्रोबेबिलिटी दैट द, ऊपर जो लिखा था उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, नीचे जो लिखा है वो हो चुका है। E1 मतलब क्या, फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन इन योगा, ऐसे दोनों उल्टे हैं, ध्यान देना इस पे। Probability that patient suffers a heart attack when it is known that he followed course of, इसका इसका इतना पेशेंस नहीं होता हमारे पास इसको लिखने का ना, और वही चाहिए सीबीएसई को। इवन मुझे भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं ना पूरा। इट इज नोन दैट ही फॉलोड कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा। क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, कोई स्टूडेंट बताएगा? बस यही स्टेप है यहां लिखने की। Probability that the patient suffers a attack when it is known that he followed the course of meditation in yoga. अटैक तो आया है, अटैक आने के चांसेस कितने दे रखे हैं उन्होंने, देखो इट इज गिवन दैट 25%, नो कितना दिया हुआ है, assume that the chances patient having a heart attack is 40%, 40/100 into, ये तो 40/100 किसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है आपने, प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट सफर से हार्ट अटैक। लेकिन ये कब आया उसको अटैक, जब वो मेडिटेशन एंड योगा फॉलो कर रहा था। मेडिटेशन एंड योगा क्या कर रहा है, 30% कम कर रहा है, लेकिन उसको तो अटैक आया, मतलब कम नहीं किया उसने। तो क्या चीज इस पे एक्ट हुई, जो 70% बचा वो एक्ट हुआ। यहां सोचना है आपको, 30% कम करता है, कम करता है मतलब उसको सेव करता है ना, उसकी लाइफ को सेव करने का काम करता है 30%, लेकिन ये तो हुआ नहीं, उसको तो अटैक आया। तो उसके फेवर में क्या चीज हुई, 30 का अपोजिट कितना होगा, 70%। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 1 - 30/100। बस यही स्टेप थी जो सोचने वाली है, और ये स्टूडेंट एग्जाम में नहीं लिखते, इसलिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। और स्टूडेंट कुछ भी करके आएंगे, बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो स्टूडेंट बहुत कम सॉल्व करेंगे। ऑल इंडिया लेवल का एनालिसिस आप देख लेना, इस क्वेश्चन का अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको छोड़ ही देंगे। मिसलेनियस है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो करते ही नहीं, और यही गलत है। हाँ देखो 40% अटैक आने के चांस तो है ही। हाँ आपका डाउट है, मैं बता रहा हूँ, 40% चांस है अटैक आएगा ही आएगा, तो 40% ये लिखा। लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, 40% चांस है, और कब उसको अटैक आया है, अटैक आया उसकी प्रोबेबिलिटी 40/100, लेकिन मेडिटेशन एंड योगा करने के बाद आया तो उसको 70% वाले वर्क किया, जो उसको हेल्प कर रहा है किसके अंदर, उसको सुधारने में हेल्प नहीं किया उसने, उसको तो अटैक आने में हेल्प कर दिया। इसलिए 1 - लिखना पड़ेगा। नेगेशन, नेगेशन में क्यों गए हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटैक व्हेन इट इज नोन दैट पेशेंट वाज फॉलोइंग मेडिटेशन इन योगा। तो मेडिटेशन योगा फॉलो कर रहा था, तो मैं क्या लिखता 30/100, ऐसा नहीं लिखूंगा। 30/100 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, वो सेफ है, वो बच गया, उसको अटैक नहीं आया। पर यह तो अटैक आया, तो नेगेशन हो गया, इसलिए 1 - लिखा। इज इट ओके नाउ? ओके गुड। नाउ PA/E2, अब तो सीधे लिखना है, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सफर हार्ट अटैक व्हेन इट इज नॉन दैट इज फॉलोड बाय मेडिसिन लिख दूंगा बस यहां पर। इसमें क्या हो जाएगा, 40/100 इंटू 1 - कितने, 25% कम करता है ना, हाँ 40/100 इंटू 75/100। देखो ये बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी बातें से मेरा मतलब ये है कि ये सब इस तरह से सॉल्व करना ना, ये सब हमें आता है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा तो भी चलेगा, आपको फाइंड करना है PE1/A। सो PA/E1 इंटू PE1 होल अपॉन PA/E1 इंटू PE1। दो इवेंट है तो दोनों का सम आएगा डिनोमिनेटर में,
PE2 PA/E1 इंटू PE1, PA/E1 कितना है 2800 अपॉन 10,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी यही टर्म आएगी 10,000 प्लस में PA/E2, PA/E2 कितना है 75 इंटू 4 कितना होगा 75 का 3 टाइम 4 टाइम कितना होता 30 मतलब 300 75 इंटू 4 300 के आगे एक जीरो और अपॉन 10,000 10,000 कट जाएगा 2800 अपॉन 3,000 एंड 2,000 5,800 ये आंसर आ रहा है क्या चेक द आंसर नमन 28/58 क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 14/29 यस आंसर प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गुड क्वेश्चन लिख लेना नाउ क्वेश्चन नंबर 16 के हिंट दे रहा हूं मैं आपको उससे करेंगे आप बस मुझे इंपॉर्टेंट चीज समझानी है भाई है तो वो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 16 ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर लो ये कौन सा था 13 प्लीज अब लो स्क्रीनशॉट पहले वाला डिलीट कर देना महक अनिमेश नमन जिन्होंने भी लिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं डाला था शायद मैंने मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप इसका पहले वाला डिलीट करना नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखो मैंने इतना इसलिए नहीं बिठाया कि इतना तो लिखना ही पड़ता है बार बार क्वेश्चन में फॉर्मूला भी नहीं हटाता हूं मैं यहां से प्रोबेबिलिटी डेट तो लिखना ही पड़ेगा ना देखो बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एक बैग है जिसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं ये बैग 1 है दूसरा बैग है जिसमें 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है इसमें अपोजिट है इसका 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स दोनों में 7 बॉल्स हैं लेकिन 3 4 एंड 4 3 है one ball is transferred from the bag 1 to the bag second and then a ball is drawn from the bag second इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर कर दी देखो आपने इसमें से एक बॉल निकाल के इधर ट्रांसफर कर दी जैसे मैं ये बोलता हूं ना इधर से बॉल इधर ट्रांसफर कर दी तो आप बोलोगे कौन सी गई यही तो सोचना है हमें थोड़ी पता रेड गई है ब्लैक गई पर दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी ना द बॉल इज सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर और फिर उसके बाद हमने सेकेंड एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग फिर इसमें से एक बॉल निकाली और वो कौन से कलर की आई है रेड कलर की आई है एक इवेंट हो चुकी है मतलब ये रेड कलर की बॉल आना हो चुका है इवेंट हो चुकी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक देखो ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक या तो इधर से ब्लैक ट्रांसफर होगी या फिर रेड ट्रांसफर होगी ना तो इवेंट क्या लेंगे आप पहले इवेंट डेट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड ठीक है ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड और A2 में क्या लिख देंगे ब्लैक की जगह रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड इवेंट डेट सेकेंड में से क्या निकल रही है बॉल आपके पास द बॉल इज ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 फ्रॉम बैग 1 तो एज इट इज रहेगा बस ब्लैक हो गया इवेंट डेट रेड बॉल इज फ्रॉम बैग 1 की जगह क्या आएगा यहाँ पे 2 सेकेंड से रेड बॉल अब PE1 क्या आएगा इधर से रेड बॉल आना रेड बॉल है ना नहीं पहले ब्लैक लिया 4/7 और अगर
ब्लैक नहीं गई है तो रेड गई है। रेड कितनी है? 3, 3/7, 4/7, 3/7, 1 आ गया। P1/A क्या लिखेंगे? P1/A क्या पढ़ोगे? इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैक वन व्हेन इट इज नोन दैट क्या रेड बॉल इज फ्रॉम बैक सेकेंड। क्या लिखेंगे? P A/A/E1 की बात कर रहा हूं मैं। P1/A में क्या आएगा? ये तो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। P1/A फाइंड करना है। इट इज टू बी डिटरमाइंड। इसका मतलब probability that the black ball is transferred from the back one when it is known that the red ball is transferred from the back two. Pa/E1, Pa/E1 पढ़ो। probability that the red ball is transferred, probability that the red ball is transferred Pa/E1 from the back one कितना आएगा? इधर से रेड बॉल की ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इधर 4+1, एक इधर एक्स्ट्रा आ गई है। टोटल कितनी हो जाएगी? 4+1+3 मतलब 5/8। एम आई राइट? एक बॉल एक्स्ट्रा आ गई इधर। और Pa/E2 क्या लिखोगे बताओ? Pa/E2 में रेड आएगी। इधर से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इधर से रेड आने की 3+1, इधर से इसमें रेड आ गई है, एक एक्स्ट्रा बॉल आ गई इधर। ठीक है? करेक्ट है। 3 रेड है, 4 ब्लैक है। करेक्ट है क्या? हेलो, जवाब दो कोई एक स्टूडेंट। हेलो, प्लीज स्पीक वन। कितनी बॉल है रेड? क्वेश्चन देखना पड़ेगा वापस। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है क्या? क्यों 4 एंड 5 है ब्लैक? क्या सेकंड में मैंने 3 एंड 4 एंड 4 एंड 3 लिख दिया। 4 एंड 5 है, इसमें 5 है। सो यहां पे 5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। अब अपन ने यहां से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है ना, तो कितना होगा ब्लैक बॉल? ब्लैक बॉल 5+1 आ जाएगा यहां पर, और डिनोमिनेटर में 5+1+4, 6/10। ठीक है? 5 ब्लैक बॉल थी, मैंने 3 और 4, 4 एंड 3 लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हो रही थी उसमें। 4/10 E/E2 4 प्लस, सॉरी यहां पर कितनी ट्रांसफर करी है अपन ने? हाँ 5/10। 4/10 आएगा ना। तो रेड ट्रांसफर कर रहे हैं अपन। E1 में क्या लिखा है? रेड। तो यहाँ 3+1 आएगा। रेड कितनी है? रेड अपने पास 3+1 आएगा ना यहाँ। 3+1। ओके, चलो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो गई है, अपने से बॉल गलत लिख दी है क्या? अभी टाइम हो गया आपका अगली क्लास का, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हो गया है पूरा क्वेश्चन, लेकिन ये बॉल लिखने में यहाँ पर मिस्टेक कर दी है मैंने, इसलिए कह रहा हूं मैं। बॉल यहाँ पे 5 लिखी हुई थी। ठीक है? यहाँ पर मैंने 7 से कर दिया ना इसको, इसलिए इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये करेक्शन होगा ना ये बॉल के हिसाब से। लिमिटिंग